Let's start, Anila. Okay. Good evening and welcome everybody to this very, very happy place. We call it the Midweek Magic Club, and we are all magicians here. Today's topic is fantastic. It is called the Untold Income Formula. How wonderful. We all love money, isn't it? So, today, the topic is going to be presented by Mr. Sanjeev Mishra, our very own money magnet. Now, before I invite him to take over, a few words about Rapid Mile. Rapid Mile has been in the business of touching lives. For the last almost 2 decades, we have been reaching out and through the teachings of the law of attraction and all over the world, in fact. Now, we are a team of 4 trainers. You must all know us by now. We are now part of your families, I hope. And our names are Mr. Shaz Kamar, Mr. Balram Talreja, Mr. Sanjeev Mishra, and myself, Dr. Anila Damodar. Now, I don't want to take any more time away from Sanjeev, so let's all unmute ourselves and welcome him today as he teaches us about this untold income formula. Over to you, Sanjeev. But before that, let's all give him a round of applause. You're muted, Sanjeev. Thank you, Anila. Thank you, all of you. Can you please put on your videos? I would like to see your faces. Just want to be sure that people are there. Wow, Abhinav, great. So, थोड़ा हिंदी इंग्लिश चलेगा और you want it in pure English or pure Hindi? बिल्कुल हिंदी इंग्लिश चलेगा. My mother is also there sitting with me. अरे वाह, great. So starting with कितने लोग जॉब में है? राइट इन चैट बॉक्स जॉब. और कितने लोग बिजनेस में है या अपना खुद का कुछ काम करते हैं? राइट बी इन चैट बॉक्स. और अगर दोनों में है तो बोथ. आई लव. और दोनों में नहीं है तो तो एन लिख दीजिए. गुड गुड गुड. बोथ देख के बहुत अच्छा लगा. आई हैव बीन इन जर्नी ऑफ बोथ फॉर मेनी इयर्स टिल आई डिसाइडेड टू क्विट माय सो कॉल्ड हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट जॉब इन अक्टूबर 2020. सो आज मैं आपसे जो बात करूंगा उसमें कुछ नया नहीं बताऊंगा. देयर विल बी नथिंग न्यू. यू ऑल नो दैट. द ओनली डिफरेंस इज, मैंने जब नेपोलियन हिल के वर्ड अर्ल नाइटिंगेल का जब ऑडियो सुना, ही सेज पीपल डोंट थिंक. तो मेरे इस सेशन का पर्पस है टू मेक यू थिंक इन दैट डायरेक्शन. एंड व्हाई इट इज सो? क्योंकि मैंने सोचा एंड इट टुक ओनली 2 years टू अचीव माय गोल्स. ओनली 2 years. तो लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम इतनी भी छोटी नहीं है कि हम 2 साल ना लगा सके. If you are looking for financial freedom. So how many of you actually are looking for some kind of financial improvement or financial freedom in life? Write Y in chat box. If not, write N in chat box. सिर्फ 3 लोग, 4. Oh, great. Thank you. Me. And how many of you are looking for but you are ashamed of accepting here? Okay, great. Thanks. So I'm talking to right audience. And before I start, I'll just tell you कि हम सेशन में क्या सीखेंगे. मैं सिर्फ 2 सिंपल चीजें बताऊंगा जिन पे मैंने कुछ सालों में काम किया कि कैसे इनकम को बढ़ाया जाता है. And these techniques are how to multiply your time and how second technique is how to make your money work for you.
instead of you always making working for money. How many of you are interested to learn or hear about it? Definitely. मैं आपकी उंगलियों को और आपके जॉ को थोड़ा सा कसरत कराता रहूंगा, बिकॉज आई लव टू टॉक टू लाइव ऑडियंस. ओके, थैंक यू. तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट, आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय बॉटम माय हार्ट कि आज आप लोग यहाँ आए और इस सेशन को सुनने के लिए आप ओपन माइंडेड होकर लर्निंग मोड से आए हैं. मैं आपको सिर्फ ये एश्योरेंस देता हूं कि आई विल गिव माय 100% एंड इंश्योर दैट एवरी मोमेंट स्पेंट हियर इज वर्थ फॉर यू. जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा वो बुक्स के थ्रू पढ़ा हुआ जरूर है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें सीखी हैं, अप्लाई की हैं, वो आपसे शेयर करूंगा. ये गारंटी नहीं है कि वो सारी चीजें आपके लिए वर्क करेंगी, बट I just want you people to start thinking in that direction. So with that, how many of you are seeing me first time as a trainer here? Morning sessions में तो मैंने लोगों को देखा है. तो to start with, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं. My name is संजीव मिश्रा and मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद एक अच्छी लाइफ जी रहा था. I did my post graduation from IIT Delhi, and then I landed up in government job, and I served there for 15 years before I really achieved my goal of financial freedom and decided to quit job to follow my passion, which I will be discussing in short with you shortly. So जैसा कि मैंने कहा कि 2004 के बाद एक अच्छी क्वालिफिकेशन के बाद एक अच्छी जॉब मिल गई थी. सब खुश थे, मैं भी खुश था, मेरी लाइफ सेट थी. साल 2 साल के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है. ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास समय है. जैसा मैंने सपने दिखाए गए थे कि एक बार अच्छा पढ़ लेगा तो सब सेट हो जाएगा, वैसा कुछ हो नहीं रहा है. बट और कोई ऑप्शन नहीं थे. फिर स्ट्रगल चालू हुई, साइड हसल्स शुरू हुए. साइड हसल्स आप लोग समझते हैं, जॉब के साथ कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना. तो वो सब मैंने करने शुरू किए क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर सम अच्छा एक फाइनेंशियल साउंड बैकअप चाहिए था, ताकि मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सकूं. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा ड्रीमर था उस समय. वो धीरे धीरे मेंटर्स आए और फिर लगा कि लाइफ अपनी अपने हिसाब से डिजाइन की जा सकती है, तो ड्रीम खुल के निकल के आने लगे. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम. दैट्स टोटल अनदर स्टोरी. बट हुआ ये कि मैंने अपने मतलब लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए काम किया, पैसे कमाए, मिसमैनेज किया, फिर वापस कमाए, फिर मिसमैनेज किया. ऐसा चलता रहा. 2017 तक में मैं इस स्थिति में था कि आई वॉज इन डेट ऑफ ₹1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. और उस समय मैंने सोचना शुरू किया कि यार समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानता. अच्छा, बाय चांस क्योंकि मैं शायद से उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप कर रहा था, तो मेरी थॉट्स खुल रही थी. मुझे ऐसे लोग मिलने लगे थे जो कम मेहनत करके भी अच्छे पैसे अर्न कर रहे थे, जबकि हमारे पास एक्सपीरियंसेस डिफरेंस आ रहे थे कि हम पैसे कमा भी रहे थे, यू नो ऑल दैट, मिसमैनेज भी कर रहे थे. कुछ लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे. इज एनीबडी रिलेटिंग टू दिस? अर्निंग मनी एंड लूजिंग मनी एंड देन अर्निंग मनी, और इसी साइकिल में लाइफ चलती रही. तो 2018 के स्टार्ट में मुझे लगा कि यार मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूं. माई लाइफ इज डायरेक्शनलेस. मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग, और ये तो पर्पस नहीं हो सकता. आई एम नॉट हियर फॉर दिस कि मैं आ गया, मैंने एक पढ़ाई कर ली, मैंने एक परिवार सेटअप कर दिया, एक ऑफिस जाने लगा, ऑफिस से घर आने लगा, थोड़ी देर टीवी देख लिया, फिर अपने बच्चों को पढ़ाने लगा, और उसको यही सोच के मैं खुश होने लगा कि जो लाइफ मैं जी रहा हूँ आज से 15 साल बाद वो जिएगा. मेरा फर्ज इतना ही है, और उसके बाद में एक दिन मेरा टाइम आएगा और मैं चला जाऊंगा. यार इसलिए तो मैं नहीं आया. देयर इज समथिंग एल्स. तो थैंक्स टू ऑल माय मेंटर्स, में लोगों के टच में आया और मुझ कुछ चीजें पता चलने लगी, और मुझे फिर अपने पैशन के बारे में अपने, और मैं सोचने लगा कि प्रॉब्लम कहाँ है. प्रॉब्लम यह है कि मैं डे टू डे अपनी लाइफ जीने के लिए, मनी अर्न करने के लिए और कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं लाइफ में. तो क्या सोल पर्पस ऑफ लाइफ यही है, टू अर्न फॉर नेक्स्ट डे? दैट वाज अ क्वेश्चन जिसने मुझे ट्रबल करना शुरू किया. एंड देन फिर मैं शाज के संपर्क में आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेप्थ में समझा, और देन चीजें होने लगी. क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स, वो चीजों ने भी, थिंग्स आल्सो स्टार्टेड लुकिंग फॉर मी.
तो मैं ऑटोमेटिकली आप समझेंगे कि कोई ना कोई ऐसे ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप में जाने लगा जहां मैं ऐसे लोगों से मिलने लगा, जहां मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज को देखने लगा कि जिसके थ्रू आप ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं बाय विथ योर जॉब, विथ योर करंट प्रोफेशन या सेपरेटली, जिसमें वो पैसिव नेचर की इनकम बन सकती है। पैसिव नेचर मीन्स आपने काम किया एक बार और पैसे आए बार बार, या आपके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के बिना जो पैसे आते हैं। टू मेक इट इजी, आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसकी रेंट आ रही है, दैट इज ए पैसिव इनकम। वो आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं मांगती। आपने गाना गाया, पैसे आ रहे हैं, दैट इज पैसिव इनकम। लता मंगेशकर को आज भी उसकी रॉयल्टी आती होगी, दैट इज पैसिव इनकम। तो मैं इस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया और फिर मुझे कुछ रास्ते समझ में आए जो जिससे मैं सिंक करता था, और फिर मैंने उन पे काम करना शुरू किया। और लगभग 1.5-2 साल काम करने के बाद मैं न सिर्फ जो अपने डेट की बात किया उनसे फ्री हुआ, एक ऐसे मेंटल लेवल पे पहुंचा जहां मैं अपने आप को समझ पाया कि यस आई कैन बी फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियल फ्रीडम एक सुनने में बड़ा वर्ड है, अगर उसकी सिंपल डेफिनेशन देखी जाए, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, एनीबॉडी कैन टेल? What do you understand by financial freedom? Anybody? When your passive income is more than 1.5 times more than your actually मतलब requirement. Okay, हाँ. Suppose किसी को 1 लाख रुपए चाहिए मगर उसकी पैसिव इनकम 1.5 लाख रुपए की है तो ही फाइनेंशियली फ्री। Yes. एक ऐसी पैसे इनकम, के लिए जीना ना पड़े, पैसे के लिए जीना ना पड़े। करेक्ट डेफिनेशन में अगर करना चाहें, इफ यू हैव ए काइंड ऑफ इनकम विच इज जनरेटेड विदाउट योर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट एंड दैट इज enough to take care of current liabilities, you can be financially free. Because फिर आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, then you have to start thinking to increase the passive income only. तो ये सिंपल डेफिनेशन है। किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 1 लाख रुपए महीना होगा, किसी के लिए 10 लाख रुपए होगा, दैट इज टोटल डिफरेंट स्टोरी। तो इस चीज को ड्राइव करते हुए जब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दिखने लगी, फिर मैं लोगों से बात करने लगा और मुझे लगा कि यार जो पेन मैंने सहा है 40-45 साल की एज तक की, क्या यही लाइफ है? क्या यही लाइफ है? जो क्वेश्चन मुझे परेशान करता रहा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन परेशान करता होगा। तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढता और मैं बताता हूँ कि नहीं यार, आई हैव डन इट, यू कैन आल्सो डू इट, एंड मेनी पीपल आर डूइंग इट, सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टेड वर्किंग और मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे ऐसे लोग मिलने लगे जो इस चीज को ढूंढ रहे थे। क्या आप लोग ऐसे लोगों में से हैं? शायद मैंने आपको आज अट्रैक्ट किया इस मीटिंग में। So when you start looking for things also start looking for you. That's why this session has been planned. ये बहुत छोटा सेशन होगा, बहुत ब्रीफ में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद आपका काम होगा इसकी डेप्थ में जाना, इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट। इफ नॉट, यू आर ओके। अगर आप कंफर्टेबल है अपनी लाइफ में, डोंट बॉदर, लाइफ को एंजॉय करिए। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसके बाद इसको डेप्थ में जाके समझिएगा, ये आपके लिए कैसे वर्क करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। स्पेंड सम मनी, स्पेंड सम टाइम एंड सी 2 साल में क्या मैजिक हो सकता है। सो दिस इज माई स्टोरी एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट अगर आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं तो आज आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दैट इज माई गारंटी। दैट एज आई टोल्ड यू, जो मैं आपको आज बताऊंगा हो सकता है बहुत नया ना हो, आपने सुना हुआ हो बट कभी इंप्लीमेंट ना किया हो। थैंक्स टू माय मेंटर एंड थैंक्स टू माई सेल्फ कि मैं ऐसे माइंडसेट में था कि मैंने उनको अप्लाई करके टेस्ट जरूर किया कि विल इट वर्क फॉर मी, एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी। सो आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन मल्टीप्लाई योर इनकम बाय यूजिंग दोज सिंपल टेक्निक्स। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको स्टार्ट करूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझाया था, वहां से इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मनी का गेम क्या है। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ पीपल। वो लोग जो जॉब करते हैं जिनको एम्प्लॉयड कहते हैं, वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो अपना कोई काम करते हैं, उनके पास स्किल होती है और वो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे डू देयर ओन वर्क, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। देन दे आर बिजनेसमैन एंड देन दे आर इन्वेस्टर्स, जो लोग अपने बड़े पैसे को सिर्फ इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करते हैं और उसके रिटर्न्स लेते रहते हैं। ये 2 सेगमेंट में ही मोस्टली लोग हैं जो मेरे से टकराते हैं।
मतलब इनसे मेरा बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा, बट हाँ आई मेट सम पीपल इन 2018-19 और उसी की वजह से मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाया। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये जो सेगमेंट है इसमें 95% लोग इसमें लाई करते हैं एंड दे हैव 5% ऑफ वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। इस सेगमेंट में सिर्फ 5% लोग हैं और ये 95% वेल्थ रखते हैं अपने पास। वी आर हियर और हियर, आई एज्यूम। कितने लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं? Anybody can tell me the difference between self-employed and business? सेल्फ एम्प्लॉयड तो होता है जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब लाइक जो मैं कर रहा हूँ कि इट इज डिपेंडेंट ऑन मी। बिजनेस इज कि यू क्रिएट अ टीम एंड द टीम वर्क्स फॉर यू, दैट इज द बिजनेस, जिसमें आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है बट योर बिजनेस इज रनिंग। या थैंक यू। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, जबकि वो भी एक नौकरी कर रहे होते हैं। वो या तो उनकी दुकान की होती है या कोई ऑनलाइन सिस्टम की होती है, किसी भी चीज की। वहां पे वो 9 to 5 या अपने शेड्यूल के हिसाब से जाते हैं। दे ट्रेड देयर टाइम टू अर्न मनी। वो अपने टाइम को ट्रेड करते हैं। टाइम लगाओ पैसा कमाओ, टाइम लगाओ पैसा कमाओ। लेकिन बिग मनी कहां पर है? 95% वेल्थ यहां पर है। क्या कोई ऑप्शन है आपका यहां से यहां जाने के लिए? आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या पॉसिबल है कि नहीं। देन यू हैव टू वर्क पॉसिबल तो है। यस। तो मैं जिस इनकम फॉर्मूला की बात कर रहा था, दैट इज वेरी सिंपल। योर इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। यहां पे जो रेट है दैट इज योर वैल्यू। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आपकी एक मंथली सैलरी होगी, फॉरेन में है तो वीकली सैलरी होगी, या जो भी हो, मतलब आपका एक रेट फिक्स है ऑन द वीकली बेसिस और मंथली बेसिस और आवरली बेसिस, और आपको उसके अकॉर्डिंगली पैसा मिलता है उस टाइम, जितना टाइम फ्रेम का होता है, चाहे एक दिन का हो चाहे एक महीने का हो। हम लोग को बचपन से, एटलीस्ट मुझे बचपन से यही बताया गया था कि इनकम बढ़ानी है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। रेट बढ़ाने का मतलब हमें एक बहुत अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, फिर उस पर स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर भी कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो स्पेशलाइजेशन की एक लिमिट पे जाना पड़ेगा ताकि हमारी वैल्यू या रेट बढ़ सके और हमको उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट मिल सके। ये जरूरी है क्या? यस, ये जरूरी है। जो मैं आपसे आज बात करूंगा उसमें इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। बट कैन यू टेल मी कि ये अगर मैं रेट पे डिपेंड करूंगा तो इस पे किसी दिन कैप आ जाएगी? देयर कैन बी कैप, राइट? यस, इफ यू फील कैप आ जाएगी। सिर्फ शाज को लगता है कि, और अभिषेक को। यस आएगी। यस। नहीं नहीं, तो करना क्या There will be a चाहिए? cap. हमें टाइम बढ़ाना चाहिए, टाइम बढ़ाना चाहिए। पर टाइम आपके पास कितना है? 24 घंटे एक दिन में। तो ये बढ़ेगा कैसे? क्या इसका कोई तरीका खोज सकते हैं जिससे टाइम बढ़ जाए? मेरी वैल्यू तो है लेकिन मेरी टाइम भी बढ़ जाए तो मेरी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी तक इनकम इंक्रीज हो रही थी, अब मल्टीप्लाई हो सकती है। कोई आदमी इसमें, somebody कैन सजेस्ट कि टाइम कैसे बढ़ाया जा सकता है जबकि टाइम सिर्फ 24 घंटे हमारे पास? बाय एम्प्लॉइंग पीपल। यस। यहाँ टाइम को, ये जो टी है ना, दैट इज टीम, creating team. When you create a certain level of value, you start duplicating yourself. जो काम आपको अच्छे से आता है वो लोगों को सिखा दीजिए, अपनी टीम क्रिएट कीजिए, आर्मी क्रिएट कीजिए। अभी आप अकेले काम करते हैं 10 आवर्स तो आपकी इनकम उस पे आती है। आपने 10 लोग की टीम बना ली, उस सब ने 10 घंटे काम किया, आपकी टीम में वर्क होने लगा 100 आवर्स। अगर आप इनसे प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगे, या तो आप इनको सैलरी पे रखेंगे या प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे भी रखेंगे, तो भी आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। दीज बिजनेस पीपल आर डूइंग दिस।
डू यू रियली थिंक कि मुकेश अंबानी 24 घंटे काम करता होगा? डू यू रियली थिंक कि मुकेश अंबानी ने सारी इंफॉर्मेशन ली होगी बिजनेस करने के लिए, पीएचडीज की होंगी कि मैं नेचुरल गैस पे कर लूं, फिर मैं ऑयल पे कर लूं, फिर मैं टेलीकॉम पे कर लूं? ही ओनली मल्टीप्लाइड टीम बाय हायरिंग पीपल जिनके पास वो एक्सपर्टाइज थी। तो अभी हम वहां पे कैसे पहुंच जाए? तो ये जो अभी जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज मेनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल एंड जो छोटे बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ इंटरप्रेन्योर्स जो है स्टार्ट, उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो मैंने कई लोगों से इंटरेक्ट करके महसूस किया, इवन हम लोग भी उसके पार्ट थे, कि वी आर अफ्रेड ऑफ डुप्लीकेशन। मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी चीज अब किसी को सिखा दी तो मेरा कंपटीटर बन जाएगा, बट द ट्रूथ इज कि ऐसा नहीं होता है। जो इट टेक्स करेज टू डू योर ओन वर्क। I really salute all of you people who are doing their own work. I'm not saying जॉब में कोई बुराई है, जॉब एक अच्छा व्हीकल है अगर आप एक सिक्योर्ड और एक कहीं ना कहीं एक कैप्ड इनकम पे खुश हैं, तो कि ठीक है यार मैं 5 लाख रुपए में मैं खुश हूं या मैं 50 लाख रुपए पे खुश हूं, वो आपका है तो इट्स ओके। लेकिन आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, देन यू हैव टू चेंज योर व्हीकल एंड शिफ्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। तो डुप्लीकेशन से लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो आदमी जॉब कर रहे हैं उनमें शायद वो करेज नहीं है, वो कभी भी आपके कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे। और अगर एक दो बन भी जाएंगे तो इट्स ओके, लॉ ऑफ अबेंडेंस काम करता है, सबके लिए सब कुछ है यहाँ पे। आपके पास आपके कस्टमर्स हैं, उनके पास उनके कस्टमर आएंगे। तो अब आपको यू हैव टू थिंक कि आप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हाउ यू कैन डू योर टाइम मल्टीप्लीकेशन। मैं आपको लास्ट में एक स्टोरी से बताऊंगा कि हाउ वी डिड इट। अदर वे ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन कैन बी, जो व्हाट आई सेड कि आपको वैल्यू बढ़ाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप यू शुड ट्राई टू बी टॉप 10% ऑफ योर इंडस्ट्री। आप जिस भी इंडस्ट्री में अपने स्किल्स को इतना बढ़ाइए, डोंट स्टॉप लर्निंग। टॉप 10 में आप आइए। इफ यू हैव ए वैल्यू देन देर इज ए अदर वे ऑफ मल्टीप्लाइंग टाइम एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। जब आप फ्रेंचाइज मॉडल में काम करते हैं तो ये T1, T2, T3, T4 ये सब जगह काम हो रहा है, आपके साथ इनका प्रॉफिट शेयरिंग है और योर इनकम मल्टीप्लाइज इवन दो यू आर शेयरिंग योर प्रॉफिट। कैन एनीबडी शेयर एनी एग्जांपल ऑफ फ्रेंचाइज मॉडल? McDonald's, Naturals ice cream, Domino's, Pizza Hut, तो Jumbo अभिनव ने Pizza. यस अभिनव ने कहा मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स की स्टोरी मैंने मूवी भी देखी है नेटफ्लिक्स पे। तो रैक रॉक पाइनियर कहे जाते हैं फ्रेंचाइज मॉडल के, ऑल्दो मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो पाइनियर थे, बट ही डिड समथिंग वेरी गुड फॉर फ्रेंचाइज मॉडल। रैक रॉक ने मैकडोनल्ड्स के ओनर्स से बात करके उसको टेक ओवर किया, वो सब अलग स्टोरी है। देन ही स्टार्टेड गिविंग फ्रेंचाइज, और आज की डेट में मुझे नहीं पता कितने फ्रेंचाइज होंगे मैकडोनल्ड्स के। तब भी मैकडोनल्ड्स की फैमिली को मल्टीप्लाइड पैसा आ रहा है, जबकि रैक रॉक को मरे हुए मेरे ख्याल से 40-50 साल हो चुके हैं। सो बाय क्रिएटिंग दिस सिस्टम आप यू कैन मेक मनी। इसी तरह का एक अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा आई होंगी, ये मैं हमेशा शेयर करता हूं, मैंने की भी है। अगर आपके पास अभी वैल्यू नहीं है, अभी आप जॉब में हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है, एक अच्छी वैल्यू वाली कंपनी को लेके उसके साथ टाइम मल्टीप्लिकेशन पे काम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में
आपके पास टाइम मल्टीप्लाई करने के और ऑप्शंस खुल जाते हैं, क्योंकि जिस दिन आप फ्रेंचाइज लेते हैं आपके पास पावर ये होती है कि आप और लोगों को फ्रेंचाइज दे सकते हैं, अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे लोग मिलके वॉल्यूम बनाते हैं, एंड देन यू गेट ए शेयर एंड ए बिग इनकम। फ्रेंचाइज में तो प्रॉब्लम यहां थी कि मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज दे सकता है, हम आगे फ्रेंचाइज दे सकते हैं, यहाँ पे ये चीज है। तो अगर आपके पास अपनी खुद की वैल्यू नहीं है, यू कैन एडॉप्ट दिस मॉडल ऑल्सो। अब मुझे बताइए ईमानदारी से, नेटवर्क मार्केटिंग के कितने ऑप्शन आए आपके पास, और आपने कह दिया कि ये तो मेंबर बनाने का काम है, मेरे से नहीं होगा। मैं किसी भी चीज को आई एम नॉट, Sorry, I didn't get the question. मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी और आपने कहा होगा कि ये तो मेंबर बनाने का काम है, मुझसे नहीं होगा, जस्ट बिकॉज हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी, हमें समझ नहीं आया वो बिजनेस मॉडल। मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा, बट दिस इज एन ऑप्शन, टाइम मल्टीप्लीकेशन की ऑप्शन है। सो फर्स्ट वे इज टू इंक्रीज योर वैल्यू, वो आपको एक जगह कैप करती है, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग द टाइम, and I have done it, we have done it rather, and I'll tell you in the last. Then comes franchise, I have talked, network marketing. Third is आज की डेट में सबसे आसान तरीका है ई कॉमर्स और इंटरनेट। If you are not present here, you will not survive for a long time. जो भी आपका बिजनेस मॉडल है, जितना भी ट्रेडिशनल हो, इंटरनेट आपका टाइम कैसे मल्टीप्लाई करता है? आपका कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो कस्टमर के मोबाइल पे है, जितने कस्टमर है उनको वहीं एक क्लिक पे आपका, उनको एक आउटलेट है उनके पास, एक क्लिक पे उनके पास आपका प्रोडक्ट जाएगा। ऐसे आप यू कैन मल्टीप्लाई योर टाइम। So there are 3-4 ways by which we can multiply time. Then the second thing which I told, that money works for you. You don't work for money. Money works for you. So अभी आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास अलग बिजनेस नहीं है, तो स्टार्ट मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे को काम पे लगा दीजिए। कैसे लगाया जा सकता है पैसे को काम पे? स्टॉक मार्केट में डालो, पढ़न, स्टॉक मार्केट में डाल दे। इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं पे भी। हाँ, इन्वेस्टमेंट। मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर नहीं था। मैंने एक दिन कैलकुलेट किया, जॉब छोड़ने से पहले अगर मैंने सिर्फ साल की 10% भी इनकम इन्वेस्ट की होती, तो इन्वेस्ट नहीं, सिर्फ सेव की होती, तो आई वुड हैव सेव्ड अराउंड 20 लाख रुपीस, सिर्फ 10% साल की जोड़ने से। और अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया होता किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो इट वुड हैव बीन अराउंड 50 lakhs to 1 crore, डिपेंडिंग कि मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहा हूँ, एंड जस्ट इन 15 years ऑफ टाइम। जबकि मैं सोच रहा था कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं क्या करूंगा, जबकि मुझे सिर्फ 10% सेव करना। तो ये मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे काम करेंगे। तो स्टार्ट सेविंग 10% ऑफ योर इनकम एनी हाउ। उसको आप अपने खाते में डालिए ही नहीं। 100 आता है तो घर में बोलिए 90 की तनख्वाह है मेरी। हाँ, चाहे मंथली चाहे ईयरली, अपना एक सिस्टम बनाइए, उसको इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट के आप लोग कितने तरीके जानते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? जैसे तो प्रॉपर्टी, गोल्ड, देन स्टॉक्स और बिजनेसेस, भाई बहुत सारी चीजें। Land and gold. पार्डन? Land and gold. लैंड एंड गोल्ड, लैंड, प्रॉपर्टीज एंड गोल्ड सब है। सब है। हम लोग पिछले 2 साल से करीब सीख रहे थे, और 1-1.5 साल, 1-1.25 साल से हमने काम शुरू किया है। मेनली स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं, मतलब शेयर मार्केट में हम काम कर रहे हैं, और इसने हमको विद इन 1 साल के अंदर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम दिखा दी कि इट कैन बी डन। तो प्रॉपर्टी भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें
पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपकी वैल्यू बढ़ती है, और साथ ही साथ आप अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉपर रेंटल्स भी आते रहते हैं। प्रॉपर्टी के साथ एक इशू है कि आपके पास एक अच्छा अमाउंट होगा तभी आप प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। स्टॉक्स का जरूर मैं शेयर करूंगा, जस्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग का माइंड ओपन अप हो, इस फील्ड को भी देखे। और अगर आप पिछले एक साल का डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में इस सेक्टर ने बहुत बूम पकड़ी है, बहुत से नए ट्रेडर्स बन के आए हैं, लोगों ने ट्रेडिंग को एक अल्टरनेट इनकम अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना शुरू किया। और हमने चूंकि किया और वी अचीव्ड सक्सेस, तो हम इसको सबसे ज्यादा बताते हैं। तो स्टॉक्स में नॉर्मली लोग एक ही चीज जानते हैं कि जब सस्ता हो तो खरीद लो और महंगा हो तो बेच दो, करेक्ट? स्टॉक से इनकम जनरेट करने का इसके अलावा कोई तरीका पता है? जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो नहीं बताए। एनीबडी नोज? Mutual funds. अशोक सर, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। जो भी मैंने किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किया। कितने लोग को पता है कि जब स्टॉक ऊपर जाते हैं तब भी पैसा कमाया जा सकता है, जब नीचे जाते हैं तब भी पैसा कमाया जा सकता है? एनीबडी नोज दैट? रेज योर हैंड। नो सर। कितने लोग को पता है कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं उससे? सिर्फ 5% लोग स्टॉक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को बताते नहीं है कि कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए। तो अगर आपके पास थोड़े कम पैसे भी हैं, प्रॉपर्टीज गोल्ड्स में आप नहीं डाल पा रहे हैं, तो आप स्टार्ट करिए इस अपॉर्चुनिटी को सीखते हुए। तो दीज आर द टू थिंग्स मैंने आपको कवर करने की कोशिश की। टाइम, मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है मैं आपको ऐसा कुछ ना बताऊं जो आपको ना पता हो। माय गोल इज जस्ट you start thinking on this direction. I did it 2 years back and I achieved what I wanted and the journey is still on. जो मैं वैल्यू की बात करता हूँ उसमें मैं हमेशा अपनी वाइफ शीनू की स्टोरी सुनाता हूँ। हमने 2014 में उन्होंने एक डाइट एंड न्यूट्रिशन का सेंटर खोला एंड उन्होंने काफी, शी इज पीएचडी फ्रॉम हर बैकग्राउंड, तो अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट थी। उसके बावजूद शी केप्ट ऑन लर्निंग, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो भी नए चीजें थी उनको सीखते गए। बाय द एंड ऑफ 2017-18, जो मैं कह रहा था टाइम मल्टीप्लिकेशन, शीनू पहले बहुत ज्यादा इस बात को लेकी थी कि मैं अपने कस्टमर या क्लाइंट या पेशेंट को डील करूंगी, मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ, पता नहीं उसका कैसे रिजल्ट आएगा। शी स्टार्टेड डुप्लीकेटिंग हर, जब हमको ये सिर्फ ट्रेनिंग में सीखने को मिला, एंड नाउ हर क्लिनिक रन्स विदाउट हर। She even, if she wants, she goes. If there is some important work, she goes, or if she has some own agenda, she goes there. So she started running the clinic in this way. उसका फायदा क्या हुआ? She started focusing on creating alternate streams of income. तो उन्होंने करीब 1 साल पहले एक इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन डाली, हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट की, जहां से शी इज एजुकेटिंग द डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर्स टू स्टेप अप और टेक एन एज इन देयर एरिया। तो एक नया स्ट्रीम खोलने का मौका मिला, क्योंकि जस्ट उसने अपना ये ब्लॉकेज हटाया कि मैं टीम बिल्डिंग करूंगी, लोगों को एजुकेट करूंगी, तो वो मेरे कंप्यूटर पर जाएंगे, या वो मेरे लोगों को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्रिएट योर टीम। हमारे दामोदर भाई एक बिजनेसमैन है, 3-4 महीने पहले किया था, उनका भी कुछ दिन पहले मेरे मैसेज आया कि he started doing this and उनको उससे काफी रिजल्ट्स, फायदे आ रहे हैं। सो अभी जो मुझे बताना था वो ऑलमोस्ट आई हैव डन। मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी ले लूंगा एंड आई विल आंसर अशोक गोयल ऑल्सो। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, वी आर अराउंड 35-40 पीपल। 80% ऑफ यू विल नॉट गेट बेनिफिटेड बाय दिस सेशन। दिस इज लॉ, 2080 लॉ। वाई? क्योंकि आप डाउट करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहोगे। आप कल से मस्त हो जाओगे वही टीवी की रूटीन में, आपको लाइफ टेक ओवर कर लेगी।
कल से आपको लगेगा मैं तो यार बहुत बिजी हूँ, मेरे को तो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखनी है। तो जब मैं इस पूरी जर्नी में था लगभग 1 साल की, और मैंने मई जून से लोगों का हैंड होल्डिंग करना शुरू किया, शेयर करने की अपने थॉट्स, तो हमारा एक 8 10 12 लोग का ग्रुप बना, जो मेरे फ्रेंड्स का और रिलेटिव्स का है, जो हमने साथ में ये जर्नी को धीरे धीरे एक दूसरे पे विश्वास करके करना शुरू किया। और उनकी लाइफ में चेंजेस आए, मेरी भी लाइफ में चेंजेस आए। तब से मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा करें कि इसको हम और लोगों तक लेके जाए। तो मैंने अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को बनाकर एक कोर्स लॉन्च किया। एक्चुअली रिजल्ट आने में प्रॉब्लम क्या होती है, जो अशोक गोयल जी का आंसर है वो इससे रिलेट करेंगे। क्वेश्चन है जो हम लोग दिस इज आवर 4 स्टेट्स। ये हमारी फिजिकल स्टेट है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट संजीव मिश्रा, ही हैज 4 स्टेट्स। इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, स्पिरिचुअल स्टेट है। हमें इन 3 स्टेट्स के बारे में पता नहीं, क्योंकि हम इतने बिजी अपनी लाइफ में, हम सारी सक्सेस के लिए इसको जोर देते रहते हैं, अपनी फिजिकल स्टेट को। हम गोल्स लिखते हैं, अपने टाइम टेबल्स बनाते हैं, उनको कभी अचीव करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, रीडिजाइन करते हैं। वी आर ऑलवेज फोर्सिंग दिस, लेकिन हमारे ये जो 3 इंपॉर्टेंट अलग सेक्टर्स हैं ना, ये अलाइंड ही नहीं है इसके साथ। इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये जो 3 डायमेंशन है, ये अलाइंड नहीं है हमारे चौथे डायमेंशन फिजिकल के साथ, जिसको हम देखते हैं, जो हमारी अवेयरनेस में है, फिजिकल डायमेंशन। इसलिए हमको रिजल्ट्स नहीं आ पाते और फिर हम थकार के छोड़ देते हैं। तो मैंने सबसे ज्यादा जो काम किया था बिकॉज ऑफ शाज, एंड जब इनसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा और उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो मैंने ये इन 3 चीजों पे ज्यादा काम किया, और मुझे इसलिए इस फिजिकल स्टेट में ज्यादा रिजल्ट्स आने लगे। कैसे आने लगे? मुझे वैसे लोग मिलने लगे, मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। अभी आपके कमरे में जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, आपके फ्रिज के नीचे क्या पड़ा हुआ आपको दिख रहा है क्या? है, लेकिन आपके कमरे में। ऐसे ही आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके आसपास लोग हैं, आपके आसपास पैसा है, आपके पास स्किल है, आपको पता नहीं। वो जब आप इन 3 चीजों को अलाउन करोगे ना, अलाइन कर दोगे, यू विल स्टार्ट फिगरिंग आउट, एंड दैट क्रिएट्स मैजिक इन लाइफ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन कौन चलेगा इस जर्नी। मुझे लोग मिले, मुझे लोगों ने बताया कि स्टॉक मार्केट से पैसे इनकम आती है। उसके पहले तो मैं प्रॉपर्टी ही जानता था। मुझे ऐसे फिर ट्रेनर मिले जिनसे मैंने बेसिक सीखी। ऐसे मुझे अगले ट्रेनर मिले जिन्होंने मुझे एकदम विजन ही चेंज कर दिया कि तुम 2 महीने में जॉब छोड़ सकते हो, इनकम रिप्लेस कर सकते हो। दिस इज माई एक्सपीरियंस। आपके लिए कौन होंगे वो लोग, कौन अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो आपको पता चलेंगी जब आप अपने उन 3 प्लेन्स को फिजिकल प्लेन से अलाइन करोगे। आपके चारों प्लेन जब एक अलाइनमेंट में होंगे, देन मैजिक विल स्टार्ट कमिंग इनटू योर लाइफ। सो दैट्स व्हाई आई फ्रेम्ड ए पर्टिकुलर वर्कशॉप जिसका नाम है डेट टू रिच बाय यूजिंग 4D टेक्नोलॉजी, बाय डूइंग इट 30 मिनट्स। तो मैं 5 डेज वर्कशॉप लॉन्च कर रहा हूं 1 फेब को 6 to 7 PM। ये व्हाट्सएप पे क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे। इसमें वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो मैंने की, एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट, और यू कैन आफ्टर दिस सेशन you can go and watch Netflix. This is your choice. So I'll request Shaz. Yes, Ashok, I'll answer these questions in workshop because it is not possible here to cover that in half an hour. Some of my friends are here. I would request anybody would like to share the experience जो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ये 3 प्लेन्स की जो हमने अलाइनमेंट की, उनके साथ उनको कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर देयर रिव्यू, जो लोग मेरे साथ 4-5 महीनों से काम कर रहे हैं।
there is Abhishek, Anurag. मैं शेयर कर लेता हूँ. हेलो. हाँ अभिषेक प्लीज. हाँ जी सर, मेरा ये था कि सिंस अप्लाइंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड 4 डायमेंशंस को अलाइन करने में सुबह के जो सेशंस हम लोग कर लेते हैं वो स्पिरिचुअल भी हो जाता है, एंड उससे क्या है कि ना एक क्लैरिटी मिल जाती है एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन देयर ओन. हमें पहले लगता था कि यार ये इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, वो अब वो अपने आप हो रहे हैं. सो थिंग्स आर नाउ मच इजियर एंड क्विकर एंड रिजल्ट्स आर फास्टर. Thank you Abhishek, God bless you. Anybody else? Hi Sanjeev sir, my name is Vishal Singla, and I actually saw your name for the first time, so I'm not part of for the other group. I'm not a friend of Sanjeev sir, but I would definitely like to have. I just want to acknowledge the point that you mentioned, that कि अगर एक बार हम चलना शुरू करते हैं, then you always keep on meeting the like-minded people, and things automatically fall into place. So I just want to acknowledge we have Mr. Nitin Dharmawat in this chat right now. I met him during my second job in 2011, and my interactions with him uh, were somehow aligned with your training, and I would say like that has helped immensely in my life. So just wanted to take this platform to acknowledge that. Thank you. Thank you Vishal. So Archit is writing. Archit is. I would also like to say something. Yes, There's a lot of noise in my background, but देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसको मैप नहीं कर पाया हूँ, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वगैरह को इतना ज़्यादा ढंग से सोचा नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स सोचते हैं और बिहेव करते हैं, वैसा अब मेरे नॉर्मल बर्ताव में आना शुरू हो गया, और बर्ताव में शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि दिमाग के अंदर वो सेट हो गया है. And that is thanks to all the conversations that I've had with you and your sessions. So yes, I mean, naturally I have started, I think the wiring inside my head has shifted considerably, significantly towards the right side. So results is a matter of time. Yeah. I can see that. Thank you, Abhinav. So it was just a preview. So thank you. To help you take a good decision, I would love to see you all there. The link is there. Please join that workshop. This is from 1st February to 5th February, evening 6 to 7 on WhatsApp. Sir, I wanted to ask you a question. Yes, Ashok. Ashok Goel here. I'm so happy to go through this workshop and meeting so many like-minded people. In fact, I have done this law of attraction course about 4 or 5 years back. But for one or other reasons, I have not been able to get benefited by it. और सब कुछ करने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आया. By the way, I'm a corporate trainer. Okay, I have worked for almost 20 years in the industry. तो मैं इस चीज को मैंने बहुत कोशिश की है इसको अपने लाइफ में लगाने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, but somehow it has not worked for me, and I don't know why it has not worked. So I wanted to know some details around this, what other people spoke about. Alignment, although I agree to what you have said, कि alignment जो है हमारी नहीं होती है, फिजिकल में हमारी अवेयरनेस में होता है, और बाकी तीनों स्टेट जो है नहीं होती है. लेकिन आप मतलब किस तरीके से अलाइन कराते हैं, अगर आप if you can spend about couple of minutes on this. मैं आपको उस वर्कशॉप में ये बताऊंगा कि क्या चीजें जरूरी हैं अलाइनमेंट के लिए. सो इफ यू आर आस्किंग मी कि मैं वो 5 मिनट में टिप दे दूं, नहीं पॉसिबल है. इट्स अ प्रोसेस. यू विल हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दैट. इफ यू आर अभी भी आप अगर ओपन है इसको और एक्सप्लोर करने के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम देयर. एंड ये क्वेश्चन 99% लोगों का होता है कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, एंड बिलीव मी, इट इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू, बिकॉज इट्स अ लॉ. एंड आप ये नहीं कह सकते कि सेब मेरे लिए नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नॉट वर्किंग फॉर मी. तो जब आप उस 5 दिन की वर्कशॉप में आएंगे तो शायद आपको ओपन अप हो कि व्हाट वाज मिसिंग. Okay.
Couple of things I would also like to add, Sanjeev, if with your permission. Ashok, see, just like Sanjeev said, law of attraction is a law, just like law of gravity. So whether we think it or not, it does work. Okay, just that why it does not work for certain people, there are certain blockages we go through. So those blockages could be in the form of not expressing gratitude or about what you're getting in life. It could be about forgiveness. It could be about the thought process. Maybe आपके कुछ thoughts में जो fear है, that take over. So our mind is a very good tool, but it has certain limitations also. So when we think about certain negative things, uh, the mind only thinks in terms of images, and whatever mind thinks in terms of images, that manifest. So कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि ओके मैं बीमार ना पड़ूं, बट इन ए वे दैट हम लोग थोड़े दिन बाद देखते हैं कि हम लोग बीमार पड़ गए हैं, बिकॉज व्हेन वी थिंक और से दिस स्टेटमेंट मैं बीमार ना पड़ूं, तो हमारे दिमाग में जो इमेज आती है दैट इज ऑफ सिकनेस. Okay, and that's what gets manifested. So instead of actually saying law of attraction does not work for me, I would suggest you to just go back to your life, try to connect the dots. अगर मेरी लाइफ में ये हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो मैंने ऐसा क्या सोचा था जिसकी वजह से ये हुआ है. It could be negative, it could be positive. So when you look back to your life, I would suggest just simply observe each and everything which is happening to your life, and just think about the reason why this is happening. And this actually observation is for the minutest thing in your life, right from moving a hand to getting a big amount of money. Okay, just start observing and you will get your answers yourself. Thank you. Mr. Saz, thanks for guidance. मैं एक्चुअली ये सब सोच सोच के थक चुका हूँ. आई एम अवेयर ऑफ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, बट after speaking to you and Mr. Sanjeev, there is looks like some hope is coming up. So I would surely be a part of this workshop and try to understand better. See, certain things कुछ हमारे blockages होते हैं जो हमारे practice से खुलते हैं. Maybe you alone are not able to work for it. If you have a mentor who is able to help you to remove your blockages, then the things would start flowing. So yes, and that is the reason why you have kept the amount of the workshop so low, so that anybody who is interested would be can join easily. Yeah, great. Thank you. Right. Ashokji, I will also suggest that you be part of our midweek Magic Club WhatsApp group if you are not there. So be in touch and we'll figure out something. Shaz bhai, I want to sure, right, sir. I want to share my experience. Sanjeev bhai. Hello. Yes, Balram sir. Good evening. Very good evening. अनिला जी, good evening. शाज भाई देखिए, मैंने तो अभी आपका कोई भी सेशन स्पेशली अटेंड नहीं किया है. जब हम चारों ट्रेनर्स आपस में मिलते हैं, तब आपने मुझसे कहा था कि आप जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पे जा रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क पे आना चाहिए. ये बात आपकी मुझे इतनी दिल से लगी ना कि अब मैं बिल्कुल ही स्मार्ट वर्क पे आ गया हूँ. मेरी फैक्ट्री 9 बजे तक चलती है, 11 बजे चलती है. मैं 6 बजे सारे काम काज निकाल के वहाँ से निकल जाता हूँ. आई डू माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड माई स्पिरिचुअल सर्विसेज. तो ये आपका एक सिंगल सेंटेंस कि बलराम, यू आर स्टिल इन द हार्ड वर्क कैटेगरी, यू हैव टू कम टू द स्मार्ट वर्क. और वो बात ही सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस ऑफ व्हाट यू टोल्ड मी ना, आज मेरी जिंदगी भर अब मैं कभी हार्ड वर्क में नहीं जाऊंगा. आई विल बी डूइंग द स्मार्ट वर्क. बट आई एम देयर इन द फैक्ट्री और नॉट, बट माय वर्क गोज ऑन व्हाटएवर टाइम द फैक्ट्री नीड्स टू बी कंटिन्यूड. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू बलराम सर. मेरे कहने का अर्थ ये है कि इनके सेशंस में एक एक पॉइंट ऐसी किसी को भी लग सकती है ना, बात दिल को लग जाए तो बात बन जाए, बात दिल को लग गई तो बात बिगड़ जाती है. तो बाय अटेंडिंग दी सेशंस वन और द अदर वे, बिकॉज यू आर क्यूरियस टू गेट समथिंग व्हिच विल हेल्प यू आउट, यू आर लुकिंग फॉर that opportunity where you can be guided in the divine order, where you are guided to have the optimum advantage of that thing. तो इन सेशंस में कहीं ना कहीं आपका आंसर होता ही है. सो प्लीज कम ज्वाइन एंड देन लर्न. थैंक यू बलराम सर. और इससे मुझे ध्यान आया कि हम लोग आज ही एक वीडियो देख रहे थे, तो उसमें ये चीज बात की गई है कि लोगों का माइंडसेट में ये अपब्रिंगिंग की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से है कि मनी कैन, इफ आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट मनी तो मेहनत करने से आएगा.
और वो माइंडसेट की वजह से वो इजी मनी को देख ही नहीं पाते, और इसीलिए कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उसको देख पाते हैं, दे क्रिएट ह्यूज वेल्थ। तो ये चीज एक्सेप्ट करने में हमें भी टाइम लगा कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतने कम पैसे में इतने कम समय में ऐसे पैसे नहीं आ सकते यार, इट इज नॉट पॉसिबल। बट करके देखा, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग, करके देखा तो हो गया। तो वो आप सबके साथ भी हो सकता है। सी यू ऑल ऑन 1st to 5th Feb, ज्वाइन फ्रॉम लिंक देयर हियर। जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें मिड वीक मैजिक क्लब में। जय श्री सोलंकी राइट नाउ अभी वो 5 days का है, बट वी विल हैव recording also, so you can get benefited by the recording if you are comfortable. So now for question answers, we are open for question answers. We all 4 trainers will try to. Anybody has any question? Sachin here. I just want to know, like, is there an option of physical classroom rather than WhatsApp? As Shaz will better answer it, but right now post corona we are not doing any physical classrooms. Okay, Sachin, actually, we used to take physical sessions for all our courses, but after the Corona pandemic, we have moved our and changed our platform directly, and we have moved to the online courses. So it's actually not a WhatsApp course. WhatsApp group would be formed, but the sessions would happen on Google Meet, just like it's happening right now, and the recordings would be shared on the WhatsApp. So in case if you are able to join this session, you would be easily able to join that session as well. And that is the reason why the prices also have slashed down, because of the online sessions. We do not have to invest so much in the venues, and we are able to keep such a low price. Okay. Where can I get the details like this price and other things? Price I've just mentioned in the chat here. It's only 499 rupees, and the session would be it's a 5-hour session for 5 days. So each day it would be 1 hour. And it would be more focused on the practical aspect, so that you can learn in a day and then practice for the day. Then next day you have a different topic to cover. You will learn that topic. So for 5 days, it would be a hand holding session, which would definitely benefit all of you. Okay, thank you. You're welcome. So back to Anila for any question answer or to move ahead further. So if there are any more questions, please feel free to ask. All right. I think I'm just going to close on one line. Sanjeev said this right in the beginning. He said, what you are looking for is looking for you. Today, we are all sitting in this amazing session and learning stuff that maybe for some of us is very, very new. The very fact that you are here is because you have questions in your heart, in your mind. You have attracted this session in the same way you are attracting answers to your questions. The law of attraction is working beautifully. Avail of this facility. Sanjeev is an amazing trainer, and you will definitely go back with a lot of knowledge. So I thank you all, and I want us all to give a round of applause to Sanjeev for such an amazing session. Thank you, Sanjeev. So thank you all for being here. Thank you all of you. Thank And you. I just request, if आपने कुछ भी यहाँ से सीखा है तो कल से इसको अप्लाई करना शुरू करें. Right. Yes. Yes. Thank you all for being here. Thank See you again you. next Bye. week. See you next week. Thank you. Thank you, everyone.